In this video, we are going to discuss how to determine if the limit of a function exists or not. तो let's say यहाँ पे हमने एक example लिया है. तो example जो है ना, मैंने मान लिया कि ये example है. Example जो है ना, वो है f of xy. F of xy is equal to x square y divided by x to the power 4 plus y square. ये जो है ना, ये प्रॉब्लम है. if x to the power 4 plus y square not equal to 0, then this is a function. इसे डिफाइन क्या है? और this is equal to 0 if x to the power 4 plus y square is equal to 0. Okay? तो ऐसे ही ये फंक्शन को डिफाइन क्या है? This is the function. We are going to find if the limit exists. Determine whether the limit exists at 0 पॉइंट पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं, यही हम अभी इस वीडियो में सीखेंगे. तो प्रॉब्लम जो है ना यही है. तो अभी मैं यहाँ पे अभी ग्राफिकली आपको दिखाना चाहता हूँ. प्रॉब्लम ऐसा है, यहाँ पे एक पॉइंट ये जो है ना 0 पॉइंट है. यहाँ पे कोई भी पॉइंट xy है. तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना f of x के लिमिट एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं, इसको हम प्रूव करने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं, लिमिट एग्जिस्ट ये दिखाने के लिए हमें देखिए हम इधर से x y जो है ना, तो इधर से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, इधर ये यहाँ से भी आ सकता है, अप्रोच कर सकते हैं इधर इस वाला डायरेक्शन में भी x y यहाँ पे आ सकता है. x जो है ना वो ये x है, y जो है ना ये y है. y को हमें फिक्स कर दिया है y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है. इस वाला डायरेक्शन से हम x को यहाँ पर अप्रोच करेगा. और ये वाला जो है ना, ये एक्सिस जो है ना, ये y एक्सिस है. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 0 इस वाला एक्सिस में. तो x को 0 मान के y को हम यहाँ से यहाँ तक 0 के पास अप्रोच कर सकती हूँ. और क्या कर सकती हूँ, दिस इज कॉल्ड along y is equal to 0, this is called along x is equal to 0, and this is called x is equal to y. तो इस वाला डायरेक्शन से भी हमें चेक करना होगा. तो यहाँ से भी चेक करना होगा, यहाँ पे 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 चेक करना होगा. That means there are infinitely many paths we have to show. There are infinitely many paths, so this is not possible for us to show that limit is equal through every path. Okay. So to show that limit is exist, we have the only way epsilon delta concept. That is the only way to show existence of a limit. But to show non-existence of a limit, non-existence of a limit, we can whether we find any two way. So let's say here this is a 0 whether if along this y is equal to 0 and along x is equal to 0, these limit are different. These are two way. if इन दोनों वे से हम देखो, इन दोनों पार्ट से हम देखा कि लिमिट जो है ना वो इक्वल नहीं की, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा. अगर इस वाला डायरेक्शन ये जो है ना x इज इक्वल टू y, अगर इस वाला डायरेक्शन में भी हमें देखा कि लिमिट जो है ना और इस वाला डायरेक्शन से जो लिमिट है ना वो डिफरेंट है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. To show the non-existence of a limit, it is very easy. It is very easy to show the non-existence of a limit. Then to show that the non-existence of a limit, we have to find any two different way such that
from that two different way limit are different. So that's we are going to show in this problem, whether we will use epsilon delta concept or we can use the two part problem, two different way to show whether we determine whether the limit exists at 0 0. So first we are going to show we are going to find two direction solution. डायरेक्शन पहला डायरेक्शन जो है ना, पहला पार्ट है तो वो है along y is equal to 0, along y is equal to 0 we show. so जैसे ही हमें लिमिट y is equal to 0 ही हमने मान लिया है और y is equal to 0 or x tends to 0 because x tends to be 0 because we are going to find the limit when xy tends to 0 0. That's why x tends to 0, y tends to 0. y को तो हमने 0 मान ही लिया है. सो यहाँ पे हम सिर्फ लिमिट क्या लेगा, x tends to 0. ये थोड़ा बाहर का चीज़ है. ओके, लिमिट x tends to 0. ये जो फंक्शन है ना, लिमिट x tends to 0. देखिए x tends to 0, y is equal to 0. ओके, यहाँ पर जैसे ही x tends to 0 होता है, देखिए x not exactly 0. So x to the power 4 is not exactly 0. When x tends to 0, x is not exactly 0. So x to the power 4 not exactly 0. So this is non-zero quantity and this is zero quantity. Non-zero quantity plus zero quantity, this is not equal to 0 because this is non-zero quantity. So this is not equal to 0. That means we have to write here this one function. So this is equal to x square y divided by x to the power 4 plus y square. ऐसे ही देखिए लिमिट जो है ना वो x tends to 0, y की जगह में हम 0 पुट किया गया, यहाँ पे 0 पुट की थी, ये 0 हो गया, यहाँ पे x to the power 4 है और यहाँ पे 0. तो अभी देखिए x tends to 0 but x not exactly equal to 0 since it is non-zero quantity. Since the denominator is non-zero quantity and it is so that when the non-zero quantity divides 0 it is equal to 0. लिमिट जो है ना 0 निकल के आया, तो यहाँ पे भी 0 ही था, यहाँ पे 0 निकल के आया, तो हमें एक अलग सा डायरेक्शन हमें लेना होगा. अभी देखिए हम क्या करते हैं, along along अगर along x is equal to 0 भी देखा जाए तो यहाँ पे 0 तो ऐसे भी 0 ही निकल के आते हैं. तो along x equal to 0 हम नहीं लेंगे, हम एक जनरल पार्ट अभी एक जनरल पार्ट लेते हैं. So we are going to take a general part. That is the general part is y is equal to mx. Y is equal to mx is the general part. Okay, this is the general part. जैसे हम इसको जनरल पार्ट अभी हम लेते हैं तो देखिए क्या मिलते हैं हमें. along y is equal to mx. लिमिट यहाँ पे हम लिखा थे लिमिट x tends to 0. When x tends to 0 and x tends to 0, that means when x tends to 0, y also tends to 0. So we are not, we should not write y tends to 0 here. We are only to write x tends to 0. X tends to 0, y is equal to mx. तो यहाँ पे क्या होगा, x square y divided by x to the power 4 plus y square. This is equal to limit x tends to 0 and y is equal to mx भी पुट कर देते हैं. x स्क्वायर y की जगह में mx पुट कर दिया है. यहाँ पे x to the power 4 हो गया है और यहाँ पे प्लस y स्क्वायर जो है ना, तो m स्क्वायर x स्क्वायर हो गया. तो अभी देखिए यहाँ पे अभी कैंसिल आउट हो सकता है क्या, तो ये तो x क्यूब हो जाएगा और x to the power 4 हो जाएगा. यहाँ पे x स्क्वायर है, ये कैंसिल तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x वाला क्वांटिटी ही रह जाएगा. तो ऐसे तो नहीं होगा. हमने ये देखा कि यहाँ पे भी अगर ये वाला 0 पुट कर देते हैं तो हमें 0 ही मिलते हैं. तो इस वाला डायरेक्शन में भी नहीं होगा, तो हमें एक अलग सा डायरेक्शन लेना होगा. तो along y is equal to, हम इसको अलग क्वांटिटी को देखकर हमें यहाँ पे लिखना होगा. देखिए
प्रॉब्लम क्या है, x वाला क्वांटिटी कैंसिल आउट नहीं हुआ, x वाला क्वांटिटी कैंसिल आउट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ हमें यही सोचना है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर हम x रखा x स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे x टू द पावर 4 है, मतलब ये x टू द पावर 4 है, इसको x टू द पावर 4 करना होगा, तभी ये कैंसिल आउट होगा। इसको x टू द पावर 4 करने के लिए यहाँ पे y के जगह में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना होगा, एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना होगा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू हम m एक्स स्क्वायर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना होगा, तभी तो ये x टू द पावर 4 हो जाएगा, इस वाला से इस वाला कैंसिल जाएगा, यहाँ पे भी x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो हम इसीलिए जिक्र लगाया y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर हमने लिया पार्ट को। तो अभी देखिए लिमिट जो है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, सो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे x टू द पावर 4 है और यहाँ पे y स्क्वायर है जो ना, तो एम एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें बचेगा क्या, बचेगा एम स्क्वायर ऊपर में और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा। तो यही है, यही है, तो एम स्क्वायर बचेगा क्या, या एम स्क्वायर बचेगा क्या, यस एम स्क्वायर नहीं, यहाँ पे तो y था, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं y था ना, सो एम एक्स स्क्वायर। और देखिए एम एक्स स्क्वायर पुट किया, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स के स्क्वायर पुट किया, y के जगह में एम एक्स स्क्वायर, y के जगह में एम एक्स स्क्वायर, सो एम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, तो ये स्क्वायर नहीं होगा, तो दिस इज। तो अभी क्या मिला, जैसे ही हम y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर डायरेक्शन से हमें जाते हैं, हमें y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर डायरेक्शन से हम 0 पॉइंट पे अप्रोच करते हैं, तो लिमिट क्या निकल के आते हैं m/1 प्लस एम स्क्वायर एंड दिस इज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। हियर राइट, यहाँ पे लिख दीजिए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m we will get different limit from different values of m we will get different limit। m जो है ना वो स्लोप है, तो डिफरेंट स्लोप के लिए हमें डिफरेंट लिमिट मिलेगा। दैट मीन्स डिफरेंट लिमिट मिल गया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया ना, तो यही प्रॉब्लम को ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ऐसे ही हमें सो प्रूफ करना होगा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट। कैसे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट प्रूफ किया, तो आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा यहाँ पे हम एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट प्रूफ करने जा रहा हूँ, सो दैट लिमिट ऑफ दिस इक्वल टू दिस, ऐसे ही प्रॉब्लम होगा। तो उस वाला प्रॉब्लम हम एप्सिलॉन डेल्टा कॉन्सेप्ट से प्रूफ करूँगा। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो और दैट्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, गुड नाइट।